आज जो हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन, that is standard enthalpy change of hydration. And hydration is always an exothermic process. And why it is exothermic? Because here attraction is occurring. Attraction occur hoti hai, right? Positive and negative ions are attracting each other. So basically it is an exothermic process. That's why it is amount of heat produced or energy produced when 1 mole of iron, 1 mole of iron. Now iron means whether it is positive or negative. When 1 mole of iron surrounds by water molecule, 1 mole of iron surrounds by water molecule under, and this is 1 mole of gaseous ion. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 1 mole of gaseous ion होना चाहिए surrounded by water molecule under standard condition. Now, how to represent an equation regarding hydration? This is Na positive, and if you want to write equation regarding hydration, then you have to take gaseous. The state of substance is a gaseous ion. It should be ion, whether it is positive or negative, लेकिन वो gaseous होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि आप सोडियम सॉलिड को हाइड्रेट नहीं कर सकते. सोडियम सॉलिड को हाइड्रेट करने के लिए यू नीड टू कन्वर्ट सोडियम सॉलिड इनटू सोडियम आयन गैसियस फर्स्ट. वो मैं अभी आपको बताता हूं कि वो कैसे होगा. बट व्हेन यू वांट टू राइट एन इक्वेशन रिगार्डिंग hydration of sodium ion, and there is a question in the past paper of paper 4 from A2s. You have a question that in which you should write an equation regarding hydration. Now this is the equation representing standard enthalpy change of hydration of sodium ion. ये सोडियम आयन की हाइड्रेशन को इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है. दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन रिगार्डिंग हाइड्रेशन ऑफ सोडियम आयन. देखें रिएक्टेंट साइड पर 1 मोल गैसियस आयन है, एक्वा का मतलब वाटर है और सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल. सिमिलरली अगर आप पॉजिटिव आयन की जगह नेगेटिव आयन के लिए ये इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो वो भी यही लिखा जाएगा कि whatever the negative ion you have, you will take negative ion plus aqua to form chloride ion aqueous. This equation representing standard enthalpy change of hydration of chloride ion. The way how to show standard enthalpy change of hydration. अगर यहां पर एग्जामिनर आपसे कहता है कि यू हैव टू राइट एन इक्वेशन रिगार्डिंग मैग्नीशियम आयन, तो आप Mg2 पॉजिटिव ले लोगे. अगर आपको वो किसी और आयन के बारे में कहता है, आयरन 2 के बारे में कहता है, आयरन 3 के बारे में कहता है, या कॉपर 2 के बारे में कहता है, वॉट एवर द आयन यू हैव, वेदर इट इज पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, तरीका लिखने का इक्वेशन यही होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि यू हैव टू राइट एन इक्वेशन रिगार्डिंग
standard enthalpy change of hydration of manganese 2 positive ion. Now how to write an equation regarding manganese 2 positive ion? तो आप क्या करोगे, आप सिंपली ये करोगे कि आप रिएक्टेंट साइड पर लोगे मैग्नीज 2 पॉजिटिव आयन, मैग्नीज 2 पॉजिटिव आयन, एंड इट शुड बी इन अ गैसियस स्टेट, और उसके बाद एक्वा यानी कि वाटर मॉलिक्यूल, और फिर मैग्नीज 2 पॉजिटिव विल कन्वर्ट इनटू मैग्नीज 2 पॉजिटिव आयन एक्वा. So now this equation representing standard enthalpy change of hydration of magnesium 2 positive ion. Hopefully आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी. और एक और इम्पोर्टेंट बात कि हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड कब ज्यादा होगा कब कम होगा वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं. The same concept is applied in case of standard enthalpy change of hydration. Now greater the hydration, जितना hydration ज्यादा होगा, greater the process of hydration. Greater hydration means greater will be the magnitude of, greater will be the magnitude of enthalpy change of hydration. जितना हाइड्रेशन का प्रोसेस ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन भी उतना ही ज्यादा होगा. तो ग्रेटर द हाइड्रेशन, greater will be the magnitude of enthalpy change of hydration. Now suppose if you want to compare aluminium 3 positive, magnesium 2 positive and sodium positive, और हमें ये आइडिया एस्टैब्लिश करना है कि out of these 3 ions which ion has greater enthalpy change of hydration. अगर आप इन तीनों आयंस को कंसीडर करें तो ये तीनों आयंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं. होपफुली ये टर्म आपको एएस से याद होगी. आइसो का मतलब सेम होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव, इन तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है. ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर. लेकिन हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जितना चार्ज ज्यादा होता है हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होता है. एंड नाउ ग्रेटर द हाइड्रेशन then greater will be the magnitude of enthalpy change of hydration. So aluminium 3 positive ion has greater enthalpy change of hydration as compared to magnesium 2 positive ion, and magnesium 2 positive ion has greater enthalpy change of hydration as compared to sodium ion. तो कभी कभार एग्जामिनर A2 के पेपर में आपसे हाइड्रेशन कंपेयर करने को कहता है. तो with the increase in charge of the ion, attraction बढ़ती है, हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ता है. इतनी ही ज्यादा हाइड्रेशन होगी उतना ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. अच्छा, एक चीज और भी इससे रिलेटेड है. अच्छा, जहां आपको कंफ्यूजन है प्लीज आस्क द क्वेश्चन वेदर यू विल मैसेज और ओपन योर माइक. ठीक है, अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन आप कर सकते हैं. मैं आपसे ये कह रहा था कि देयर इज अ क्वेश्चन इन द पास्ट पेपर कि आपको एग्जामिनर कंपेयर करवाता है कि विच आयन हैज ग्रेटर हाइड्रेशन. यू हैव टू कंपेयर हाइड्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन एंड ब्रोमाइड आयन. सवाल है कि कंपेयर enthalpy change of hydration, enthalpy change of hydration of bromide or fluoride ion. Anyone can compare fluoride and bromide ion? Okay, किसी ने आंसर दिया है. सर चार्ज की वजह से मैग्नीट्यूड क्यों बढ़ रहा है? बेटा अभी मैंने आपको बताया कि जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है तो अट्रैक्शन की पावर ज्यादा होती है. इट हैज ग्रेटर पावर ऑफ अट्रैक्शन. It has greater ability to attract water molecule. Water molecule become near to the ion. और जितना water molecule ion के करीब होगा उतने ही जो है
ज्यादा होगी हाइड्रेशन की एबिलिटी। साद रशीद, एनी क्वेश्चन? सर फ्लोराइड की हाइड्रेशन ज्यादा होगी। बिल्कुल ठीक है। if we want to compare fluoride and bromide, तो सर वो फ्लोराइड का वो कम है, अपना एटॉमिक रेडियस कम है। तो क्या नहीं ला, पता नहीं बेटा क्या मैसेज आपने किया था, समझ में नहीं आया तुम्हारा। फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इट कंपेयर इज टू नॉट ब्रोमीन। रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस वक्त बात होती है जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कोई शेयर्ड पेयर की बात नहीं है। सर फ्लोराइड का एटॉमिक रेडियस कम है। जी, अब फ्लोराइड जो है, हाइड्रेशन जो है ब्रोमाइड और फ्लोराइड में, फ्लोराइड आयन का साइज छोटा होगा, तो हाइड्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन जो है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन जो है, इट शुड बी ग्रेटर एज कंपेयर टू हाइड्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन। और उसकी वजह यह है कि दोनों का जो fluoride and bromide both belongs to same group of periodic table, but fluoride ion is smaller in size. Fluoride ion जो है वो smaller in size है as compared to bromide ion. तो फ्लोराइड आयन स्मॉलर इन साइज है एज कंपेयर टू ब्रोमाइड आयन, इसलिए इसमें पावर ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज होंगे, और वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज होने का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन जो है वो ज्यादा हो। ठीक है जी, होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ओके जी, ये बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट डेफिनेशन जो आपके एएस के सिलेबस में आप पढ़कर आए हैं, and that is related to standard enthalpy change of solution. अच्छा, अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन जो है ये A2 में भी हम पढ़ेंगे, A2 में भी इसकी कैलकुलेशंस भी हैं, बट राइट नाउ मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूं रिलेटेड टू AS। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन जो है वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं तो वो प्रोसेस एंडो भी हो सकता है, वो प्रोसेस एक्सो भी हो सकता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इज एक्चुअली रिलेटेड टू डिसॉल्विंग ऑफ कंपाउंड। वंस अ कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब कोई कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो उसके दौरान कुछ एंथैल्पी चेंज आता है, उसी एंथैल्पी चेंज को हम एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। नाउ whether it is exo or endo, इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि it is enthalpy change occurs, it is enthalpy change occurs when 1 mole of a compound, और यहां पर कंपाउंड की जगह कुछ बुक्स में आपको 1 मोल ऑफ आयोनिक लैटिस लिखा हुआ मिलेगा, ये भी एक्सेप्टेबल है। 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड और आयोनिक लैटिस dissolves in an excess of water, to make a solution of infinite dilution, to make a solution of infinite dilution in its
standard state in its standard state under standard conditions. Under standard conditions. ये है बेटा, enthalpy change occurs when 1 mole of a compound or ionic lattice dissolves in an excess of water to make a solution of infinite dilution in its standard state under standard condition. अच्छा, अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चन स्टूडेंट के जहन में क्रिएट होते हैं। पहला ये सवाल है कि जो कंपाउंड भी आप इस्तेमाल करेंगे जिसको आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं उसका 1 मोल होना चाहिए। यहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये है कि वाटर की क्वांटिटी फिक्स नहीं है। Whatever the amount of water is added, आप उस वक्त तक वाटर ऐड करते रहेंगे till all 1 mole of compound dissolves in water. और देखें, जब तक कंपाउंड डिसॉल्व होता रहेगा एंथैल्पी चेंज आता रहेगा ना। आप अगर फर्ज करें कि कंपाउंड डिसॉल्व हुआ, उसने एनर्जी रिलीज की, फिर थोड़ा और डिसॉल्व हुआ, उसने फिर थोड़ी और एनर्जी रिलीज की, फिर थोड़ा और डिसॉल्व हुआ, फिर थोड़ी उसने और एनर्जी रिलीज की। तो जब तक कंपाउंड डिसॉल्व होता रहेगा या तो एनर्जी रिलीज करता रहेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा। इन बोथ ऑफ द केसेस, चाहे एनर्जी रिलीज हो या एनर्जी एब्जॉर्ब हो, जब तक कंपाउंड का 1 मोल डिसॉल्व नहीं हो जाता तब तक एंथैल्पी चेंज होता रहेगा। लेकिन जब कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएगा कंप्लीटली तो और फिर आप उसमें वाटर ऐड करेंगे तो फिर एंथैल्पी चेंज अकर नहीं होगा। इसलिए इस डाइल्यूशन को कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि नो मोर एंथैल्पी चेंज अकर्स, नो मोर एंथैल्पी चेंज अकर्स। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि अपॉन एडिशन ऑफ वाटर नो मोर एंथैल्पी चेंज अकर। यानी आप उसमें जितना भी पानी डालें उसके बाद एक स्टेज ऐसा आएगा कि जब एंथैल्पी चेंज आना बंद हो जाएगा। ये वो स्टेज होगा जब आपका कंपाउंड जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। तो जब आपका कंपाउंड कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए उस स्टेज को, हाँ बेटा देखिए, अब आप A2 में पढ़ेंगे, आरंभ का एक क्वेश्चन है कि कंपाउंड इनसॉल्युबल भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन अब आप A2 में पढ़ेंगे कि नेचर में कोई ऐसा कंपाउंड नहीं होता जो डिसॉल्व ना हो। हर कंपाउंड डिसॉल्व होता है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि हर चीज की एक कॉस्ट होती है, इसी तरह से हर कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है और वो आप प्रोवाइड करेंगे तो थोड़ा बहुत कंपाउंड डिसॉल्व जरूर होगा। अब आप A2 में आके ये बात पढ़ेंगे, इन ऐसे कंपाउंड्स को हम स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड कहते हैं। नेचर में कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है जो वाटर में डिसॉल्व ना हो, किसी ना किसी स्टेज पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिसॉल्व जरूर होगा। तो इसलिए अब ये A2 में कॉन्सेप्ट आप आगे पढ़ेंगे कि इसका क्या कहानी है इससे रिलेटेड, और ये भी डिटेल पढ़ेंगे आप A2 में के अंदर के जो है वो कंपाउंड डिसॉल्व होता कैसे। लेकिन बहरहाल ये इसकी डेफिनेशन है कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड को डिसॉल्व होना चाहिए, इन एन एक्सेस ऑफ वाटर होना चाहिए, टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन होना चाहिए। इस कंडीशन, इस डेफिनेशन को हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, नाउ हाउ टू शो एन इक्वेशन रिगार्डिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। उसका तरीका यह है कि आपने 1 मोल ऑफ कंपाउंड लेना है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड के अंदर आपने ऐड किया एक्वा यानी वाटर, और जो आप 1 मोल ऑफ कंपाउंड ले रहे हैं ये आयोनिक कंपाउंड है। अपने स्टैंडर्ड स्टेट में आपको पता है कि आयोनिक कंपाउंड का स्टैंडर्ड स्टेट जो होता है वो सॉलिड होता है। तो 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व्स इन एक्वा एक्सेस ऑफ वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसको लिखने का एक तरीका तो ये है कि आप सबको पता है कि जब भी आप कोई आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयोनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होकर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है। आयोनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होता है टू मेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ये इक्वेशन है रिप्रेजेंटिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, and this is the equation representing standard enthalpy change of solution of NaCl.
अच्छा, और कुछ किताबों में या कुछ कॉन्सेप्ट्स में आपको यहाँ NaCl अलग अलग लिखा होने के बजाय इस तरह से NaCl एक्वस लिखा हुआ नजर आ सकता है। तो जो मैंने ऊपर लिखा और जो मैंने नीचे लिखा, दोनों का मतलब यही है। मतलब यही है कि वो कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होके एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो NaCl सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू NaCl एक्वस, या आप लिखें Na पॉजिटिव एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस। तो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन की इक्वेशन लिखते हैं, नाउ फॉर मैग्नीशियम सल्फेट उसी तरह एक्वा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मैग्नीशियम आयन एक्वस, मैग्नीशियम आयन एंड सल्फेट आयन। मैग्नीशियम सल्फेट डिसॉल्व्स इन वाटर, और ये मैग्नीशियम आयन और सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो गया, और इसकी जगह आप लिख सकते हैं MgSO4 एक्वस ऑल्सो। तो ये दोनों इक्वेशंस जो मैंने लिखी हैं, एक सोडियम क्लोराइड के लिए और एक मैग्नीशियम सल्फेट के लिए, ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी, होपफुली आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। और इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, जो भी हमने प्रीवियस क्लासेस में भी जो डेफिनेशन डिस्कस की हैं, रिगार्डिंग दोज डेफिनेशन, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, देखिए बेटा, अभी मैं आपको एएस के वो चीजें रिवाइज करवा रहा हूं जो कि आपको A2 में रिक्वायर्ड है। डेफिनेटली अभी हमने A2 स्टार्ट नहीं किया, ये सिर्फ मैं आपको एएस का ही रिवीजन करा रहा हूँ। लेकिन चूंकि ये ऑनलाइन है, तो थोड़ा सा मामला, एक बच्चे का मैसेज था कि ये स्लो है, तो भाई स्लो रहता है इनिशियली। एक तो आपको ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो है वो इट टेक्स टाइम के जी हमारे और आपके साथ एक इक्वेशन डेवलप हो। और अगर मैं तेजी के साथ आगे बढ़ूंगा, तो जो कॉन्सेप्ट आपके एएस में अच्छे नहीं थे, जिनको हमें A2 में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो है वो जरूरी है कि आप जो है थोड़ा सा स्पीड अप होते जाएंगे जैसे जैसे हम वक्त आगे बढ़ता जाएगा, और आप जो है वो कंफर्टेबल होते जाएंगे इन ऑनलाइन क्लासेस के साथ। ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लीजिए, ताकि वरना फिर मैं आगे बात करूं। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, एक कोई क्वेश्चन आया है, सर इज द सॉल्वेंट ऑलवेज नेसेसरली वाटर? अच्छा, देखो, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, तो यस, इन दिस केस इट इज ऑलवेज वाटर। बट एज वी नो कि जब हम किसी कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वाटर ही सॉल्वेंट होना चाहिए हमारा, सॉल्वेंट तो कोई भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, वी आर रिलेटेड टू एक्वस सॉल्यूशन, एंड दैट्स व्हाई सॉल्वेंट इज वाटर। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में बेटा मैं क्या, कौन सी बात आपको क्लियर नहीं है? अगर आप मुझे स्पेसिफिक करें तो मैं आपको बताऊं कि क्या चीज जो है वो आपको नहीं समझ में आई। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में हमने ये कहा था कि 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म होना चाहिए, और 1 मोल ऑफ वाटर जो है वो 1 मोल ऑफ वाटर जो है वो जब भी बनता है, तो हमेशा एसिड अपना H पॉजिटिव आयन देता है, और OH नेगेटिव अपना जो है वो बेस से आता है, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में मिलकर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा था कि जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, बेटा ये आप लोग इतने लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो, अगर आपका एसिड और बेस, अगर आपका एसिड और बेस जो है वो दोनों
स्ट्रॉन्ग है तो वो सेम नंबर ऑफ एचाइन और ओएचाइन प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की जो वैल्यू होती है वो एक ही जैसी रहती है। यानी अगर आप HCl की जगह HNO3 इस्तेमाल कर लें या NaOH की जगह आप KOH इस्तेमाल कर लें तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड जो है वो वही रहेगा, क्योंकि HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो भी कंप्लीटली आयनाइज होगा, HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो भी कंप्लीटली आयनाइज होगा। जितने आयन एचाइन बनाएगा HCl उतनी एचाइन HNO3 भी बनाएगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की जो वैल्यू है वो सेम होती है, क्योंकि वो कंपाउंड पे डिपेंड नहीं करती। एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ एचाइन और OH नेगेटिव आयन पर। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं, चाहे वो कोई भी हो, एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू उस केस में सेम रहती है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। स्टिल अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो तो वो आप मुझे फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपके सामने जो है वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिकॉल कर रहा हूं। वो कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेटेड टू हेसिस लॉ। अच्छा, हेसिस लॉ में भी प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट को काफी होता है एएस में, और हेसिस लॉ जो है वो जनरली स्टूडेंट को जो है वो उनसे साइकिल नहीं बनता हेसिस का। ठीक है, मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा, कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, तो होपफुली उससे आप जो है वो इजीली साइकिल्स जो है वो बना पाएंगे। इन जनरल मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा हेसिस लॉ की डेफिनेशन पर। ये डेफिनेशन वही है जो आप अपने सिलेबस में पढ़कर आए हैं, और वो डेफिनेशन ये है कि हेसिस लॉ हमें ये बताता है कि जब भी कोई भी रिएक्शन होता है तो मैसेज है कि ओके, तो हेसिस लॉ ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन होता है उसमें जो एंथैल्पी चेंज अकर होता है इट शुड रिमेन कांस्टेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ द रिएक्शन बाय व्हिच रिएक्शन वाज परफॉर्म। यानी अगर आप फर्ज करें कि आप कार्बन सॉलिड को एक्सेस ऑफ एयर के साथ रिएक्ट करवाते हैं टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका ऑल्टरनेटिव तरीका ये है कि पहले कार्बन सॉलिड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस, और फिर स्टेप 2 में कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस जो है वो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से फर्दर रिएक्ट करेगा और ये प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस। अब देखो बेटा, जो मैंने 2 इक्वेशंस आपके सामने लिखी हैं, अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन देखें तो यहाँ कार्बन इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर आप सेकंड 2 इक्वेशंस देखें तो इनमें हमने अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाया है, लेकिन इनडायरेक्ट है। पहले कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ और बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड टर्न्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो हेसिस ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, जो एंथैल्पी चेंज होता है वो रिमेन सेम होता है whether a reaction is taking place in one step or more than one step। अब जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर डायरेक्ट स्टेप जो है उसकी वैल्यू -x है, और ये इनडायरेक्ट स्टेप हैं, इनकी वैल्यू डेल्टा H1 ये -y है, और डेल्टा H2 जो है इसकी वैल्यू -z है। तो हेसिस ये कहता है कि जो एंथैल्पी चेंज डायरेक्ट स्टेप का है यानी -x, वो इक्वल होगा
sum of enthalpy changes of all the steps involved. यानी इसका मतलब ये हुआ कि माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस माइनस जेड। यानी इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू सम ऑफ डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। ये है बेसिक आइडिया हेसिस लॉ का। यानी जो एंथैल्पी चेंज अकर होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, रिमेन सेम होता है, वेदर अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन और मोर देन वन स्टेप। रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो, तो एंथैल्पी चेंज अकर होता है, इट शुड रिमेन कांस्टेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ द रिएक्शन बाय व्हिच रिएक्शन इज परफॉर्म। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको हेसिस लॉ में बताऊं, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली यूज करनी होगी अगेन A2 में, कि जो आप डायरेक्ट रिएक्शन होता है और जो इनडायरेक्ट रिएक्शंस होते हैं, इनडायरेक्ट रिएक्शन को अगर आप सम करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो नेट इक्वेशन आएगी। जैसे आपको अगर मैं कहूं कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है, और अगर मैं आपसे कहूं कि आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दें, जब आप ऐड करेंगे तो सिंपली जैसे आप अलजेब्रा में ऐड करते हैं तो अलजेब्रिक समेशन होगा, और यहाँ पे CO रिएक्टेंट साइड पर है और ऊपर CO प्रोडक्ट साइड पर है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर आप इक्वेशन 2 और 3 को सम करेंगे तो सम ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 विल बी इक्वेशन 1। तो ऐसा ही होता है हेसिस लॉ में, कि हेसिस लॉ में हम कोई भी रिएक्शन की वैल्यू इनडायरेक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं। वो रिएक्शंस जिनकी वैल्यू आप डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, हेसिस लॉ के जरिए से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इनडायरेक्ट वेज। लेकिन बहरहाल ये हेसिस लॉ का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी रिएक्शन होता है, चाहे वो वन स्टेप में हो या मोर देन वन स्टेप में हो, तो जो एंथैल्पी चेंज अकर होता है, इट शुड रिमेन कांस्टेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ द रिएक्शन। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। अच्छा, अब आपको मैं हेसिस साइकिल बनाने का कॉन्सेप्ट बताता हूं। एक हेसिस साइकिल वो होता है जिसमें एग्जामिनर आपसे कहता है कि यू हैव टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, और आपको गिवन होता है कोई एक इक्वेशन या एक रिएक्शन गिवन होता है, उसका एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना होता है, और आपको डेटा जो गिवन होता है वो फॉर्मेशन का गिवन होता है। इन दैट केस जो आपका हेसिस साइकिल बनेगा, जी हसन अली खान, जो आपका साइकिल बनेगा उसमें बनाने का या लिखने का तरीका ये है कि ऊपर आप सिंपल इक्वेशन लिख दें, जिस इक्वेशन का डेल्टा एच आर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन आपको फाइंड करना है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट साइड है, ये दूसरी प्रोडक्ट साइड है। अच्छा जी, अब आप देखिए नेक्स्ट, कि आपको जब हेसिस साइकिल बनाना हो तो हमेशा ऊपर जो एग्जामिनर आपसे कहता है कि इस इक्वेशन का डेल्टा एच आर लिखें, वो इक्वेशन ऊपर लिखें, और जो उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो नीचे लिखें। अब एलिमेंट्स कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, रिएक्टेंट एक से ज्यादा भी हो सकता है। जितने भी रिएक्टेंट साइड पे आपके पास कंपाउंड हैं, एलिमेंट्स व्हेन कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, इसे हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। एलिमेंट्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गए, और जब भी एलिमेंट मिलकर कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो यहां पर देखें, एक तरीका यह है कि पहले एलिमेंट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो और फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। और डायरेक्ट पाथ क्या है? डायरेक्ट पाथ यह है कि एलिमेंट्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट में,
और जब एलिमेंट डायरेक्टली कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में तो ये हो जाएगा एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब अगर आप एरो की डायरेक्शन देखें तो एरो की डायरेक्शन आपको ये बता रही है कि एलिमेंट प्रोडक्ट में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहे हैं, और इनडायरेक्ट वे ये है कि पहले एलिमेंट रिएक्टेंट में और फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और डायरेक्ट वे ये है कि एलिमेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हेसेस लॉ ये कहता है, मैं यहां लिख भी रहा हूं, कि ये इनडायरेक्ट पाथ है, ये इनडायरेक्ट पाथ है और ये डायरेक्ट पाथ है। ये इनडायरेक्ट पाथ है, ये डायरेक्ट पाथ है। तो हेसेस ये कहता है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड, जो कि डायरेक्ट है, इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑफ इनडायरेक्ट पाथ। और इनडायरेक्ट पाथ में क्या है? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट प्लस डेल्टा HR, और डेल्टा HR कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालना है तो ये हो जाएगा अब फॉर्मूला, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है बेटा, अब ये फॉर्मूला आप माइक बंद कर दें। ये फॉर्मूला आपने एज में यूज किया था न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, अगर आपको याद हो। और इस फॉर्मूले की जो डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन कहां से आई, वो फॉर्मूला ड्राइव कहां से हुआ? वो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आपको जब भी हेसेस साइकिल बनाना हो जिसमें आपको किसी भी रिएक्शन का डेल्टा H कैलकुलेट करना है, तो वो इक्वेशन आप ऊपर लिखें, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स नीचे लिखें। जैसे मैं एक हेसेस साइकिल बना रहा हूं, अब फर्ज करिए कि एग्जामिनर आपसे कहता है कि आप जो है वो इस रिएक्शन के लिए, आप इस रिएक्शन के लिए आपको इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालना है। अब इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जिस इक्वेशन का डेल्टा H निकालना है वो नीचे लिखें। अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? मैंने कहा था ये नीचे लिखे एलिमेंट्स, कार्बन, जी प्रीवियस स्लाइड में अच्छा, अब देखें आप रिस्पेक्टिव एलिमेंट में कार्बन आपने लिखा, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में आपने हाइड्रोजन लिखा, उसके बाद रिस्पेक्टिव एलिमेंट में ऑक्सीजन है। अच्छा, यहां पर कितने कार्बन हैं? आपको C2H6 में 2 कार्बन चाहिए, तो यू विल राइट 2, और 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो ये 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन मिलकर ये कहलाएगा फॉर्मेशन ऑफ C2H6। फॉर्मेशन ऑफ C2H6, ये रिएक्टेंट बन गया, और फिर रिएक्टेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अब आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के केस में ये डायरेक्ट कन्वर्जन है कि कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन
टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें 2 कार्बन है, टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए आप यहां पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस क्या लिखेंगे आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ H2O, और फॉर्मेशन ऑफ H2O मल्टीप्लाई बाय 3, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय 2 एंड फॉर्मेशन ऑफ H2O मल्टीप्लाई बाय 3। ये मैं आपको एस का ही कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं। ये है एंथैल्पी साइकिल बनाने का तरीका, हेसिस साइकिल बनाने का तरीका, कि जब एग्जामिनर आपको कोई भी एक इक्वेशन की डेल्टा एच फाइंड आउट करने को कहता है, तो आप वो इक्वेशन ऊपर लिखेंगे, नीचे उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स लिखेंगे, और फिर इन एरोस को आपस में कनेक्ट कर देंगे, और एरोस को इस तरह से आपस में कनेक्ट करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट प्लस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब आप अगर यहां पर एरो देखें तो देखिए अब एरो क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ C2H6 प्लस डेल्टा H नॉट जो आपको कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट पाथ है, 2 इंटू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 इंटू फॉर्मेशन ऑफ H2O। ये है सिंपल कॉन्सेप्ट बेटा, ये आपको एएस के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने में काम आएगा, और ये कॉन्सेप्ट आपको A2 के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी काम आएगा। ये ओवरऑल आपका फॉर्मूला बन गया। अब आप इसमें से जो भी चीज मिसिंग है आपके डेटा में, आप उनमें से कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर एग्जामिनर कहता है कि हेसिस साइकिल ड्रॉ करके शो करो, तो ये मैंने आपको हेसिस साइकिल बनाने का तरीका भी बताया। तो एक तरीका ये है कि जब भी एग्जामिनर आपको किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए कहता है और आपको फॉर्मेशन का डेटा गिवन है, तो उस साइकिल को ड्रॉ करने का तरीका आपके सामने है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई सवाल आपका है तो प्लीज पूछ लीजिए। जी बेटा। देखिए जी, ये जब भी आपको एग्जामिनर हेसिस लॉ का हेसिस साइकिल बनाने को कहे, जिस रिएक्शन के लिए बनाने के लिए कहे वो रिएक्शन आप ऊपर लिख दें, और उसके नीचे जो है वो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स लिख दें, जो भी उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब अगर फर्ज करें कि इस रिएक्शन में कार्बन की जगह सोडियम इस्तेमाल होता, या कोई इस इक्वेशन के अंदर नाइट्रोजन का इस्तेमाल हो रहा होता, या कोई और एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा होता, तो वो हम नीचे वो एलिमेंट लिख देते, और उसको फिर आप इस तरह से आपस में कनेक्ट कर देते कि एलिमेंट्स रिएक्टेंट के साथ कनेक्ट होंगे और एलिमेंट प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट होंगे डायरेक्ट, और फिर रिएक्टेंट का और ओवरऑल रिएक्शन के डेल्टा एच का सम जो है वो इक्वल होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड के। ये जो है वो तरीका होता है ओवरऑल डेल्टा एच लिखने का। ठीक है जी, होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी, और अगर इसमें आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। सर ऐसी एक और एग्जाम्पल करा दें ताकि एक और दफा क्लियर हो जाए। अच्छा ठीक, एक और एग्जाम्पल करा देते हैं। एक और एग्जाम्पल ये है कि अगर सपोज के आपको एग्जामिनर ये कहता है कि यू हैव टू फाइंड आउट डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन, आपको इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट निकालना है, और ये इक्वेशन ये है कि सोडियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस प्लस H2O, ये इक्वेशन है। आपको इस इक्वेशन का डेल्टा एच निकालना है। चलो अब तुम लोग खुद बताओ कि इस इक्वेशन का डेल्टा एच निकालने के लिए अब आप साइकिल में रिस्पेक्टिव एलिमेंट कौन कौन से लोग हैं।
कौन कौन से एलिमेंट्स यहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं? हमेशा ऊपर वो इक्वेशन लिखते हैं जिसकी हमें डेल्टा एच कैलकुलेट करनी हो या गिवन हो, और नीचे हम लिखते हैं वो रिस्पेक्टिव एलिमेंट जो इस रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज हुए हैं। अब जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में रिस्पेक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हैं? सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है एंड ऑक्सीजन। वेरी गुड। किसने आंसर किया था? साद रशीद और जीरक, शायद जीरक शहजाद। ओके, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा। और अब आप देखें यहाँ पर कि रिस्पेक्टिव एलिमेंट नजर आ रहा है आपको कि सोडियम है, और सोडियम का नेचुरल स्टेट सॉलिड है, और यहाँ सोडियम का कोफिशिएंट 2 आपको रिक्वायर्ड है, तो आपने 2 सोडियम ले लिया। सेकेंड एलिमेंट हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन नेचुरली, हाइड्रोजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। और फिर तीसरा एलिमेंट कार्बन है, कार्बन नेचुरली मोनोएटॉमिक होता है, कार्बन सॉलिड होता है, और यहाँ कार्बन बैलेंस करने के लिए यू नीड टू हैव 2। और उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो O2 आपको पता है गैसियस फॉर्म में होता है, और यहाँ अगर हम ऑक्सीजन बैलेंस करें तो 3 × 2 6 है, तो यहाँ 3 लिख दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ये हमने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स लिख दिए हैं इक्वेशन के नीचे। अब हमें इनको कनेक्ट करना है, तो कनेक्शन का तरीका ये बताया था कि एक एरो रिएक्टेंट साइड पे कनेक्ट होगा, एक एरो प्रोडक्ट साइड पे कनेक्ट होगा। एक एरो इक्वेशन जो आपको गिवन है उस इक्वेशन के रिएक्टेंट साइड पे कनेक्ट होगा। अब आप अगर देखें तो यहाँ रिएक्टेंट साइड पर सिर्फ एक ही कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहां हम लिखेंगे कि एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप कहेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया? तो उसकी वजह यहां पर 2 मोल ऑफ सोडियम है, तो 2 मोल ऑफ सोडियम होने की वजह से आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट साइड पर आ जाइए, तो प्रोडक्ट साइड में 3 प्रोडक्ट्स हैं, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। तीनों का डेल्टा H अलग अलग होगा, तो आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ H2O, ये तीनों प्रोडक्ट साइड पर हैं, तो इन तीनों डेल्टा HF का जो सम है ये एक्चुअली सम ऑफ प्रोडक्ट साइड है। अब अगर आप नेट लिखेंगे इक्वेशन, तो ये देखें यहां पर ये एरो जो है पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना और फिर वो कन्वर्ट हुआ इनटू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अब आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि HF ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस डेल्टा H0 जो आपको कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट साइड, और प्रोडक्ट साइड पर है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस फॉर्मेशन ऑफ H2O। ये बन गई आपकी ओवरऑल इक्वेशन। अब इसमें आप सारी वैल्यूज पुट करके डेल्टा H0 कैलकुलेट कर सकते हैं जो आपको इस रिएक्शन का अननोन। तो दिस इज हाउ टू मेक हेसेस साइकिल, और इसको प्रैक्टिस कीजिए, बुक से और इक्वेशन देखिए, पास पेपर के क्वेश्चंस एएस में जो आए हुए हैं उनको देखिए, ये रिवाइज कीजिए। देखिए आप रिवाइज करेंगे तो आपको A2 में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हेसेस साइकिल बनाने का A2 में डायरेक्टली भी आता है। तो मैं रिवाइज इसीलिए आपको वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करवा रहा हूं जिनकी आपको A2 में जरूरत पड़ेगी या A2 के पास पेपर को सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ेगी।
तो ये नहीं समझिए कि ये कोई हम वक्त जाया कर रहे हैं, ये बेसिकली जो है वो आपको जरूरत है इसकी, इसके बगैर आपका A2 का अच्छा पेपर नहीं होगा। सर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंबशन ऑफ कार्बन एक दी चीज होती है, मतलब अगर फॉर्मेशन की जगह अगर यहाँ पर इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड जी बिल्कुल वैल्यू सेम होती है, तो अगर आप यहाँ पर जो है वो कंबशन ऑफ कार्बन कंसीडर करेंगे तब भी हो जाएगा। और यहाँ सोडियम कार्बोनेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो डिपेंड करता है कि आप जो है आपको डेटा में गिवन क्या है। लेकिन बात बिल्कुल ठीक है कि कंबशन ऑफ कार्बन और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू सेम होती है। इसलिए अगर फर्ज करें कि आपको जरूरत फॉर्मेशन की है और एग्जामिनर डेटा जो है वो कंबशन का दे देता है, तब भी आपको पता है कि कार्बन का कंबशन और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की वैल्यू सेम होती है, तो आप वही वैल्यू यूज कर सकते हैं कंबशन की जगह फॉर्मेशन की। ठीक है जी, होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और इससे रिलेटेड अब अगर कोई क्वेश्चन है, यानी इसका मतलब है मैंने आपको ये एक आउटलाइन दे दी कि मैं आपको ऐसे साइकिल आना चाहिए। अगर कुछ क्वेश्चंस आपके हों तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, जो आपसे ना हो रहे हो या आपको प्रॉब्लम हो रहा हो। एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट बताऊं कि अगली क्लास के अंदर जो है वो मैं एएस का इक्विलिब्रिया रिवाइज करूंगा। ठीक है, ये चीज तो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको एएस का, क्योंकि एएस का इक्विलिब्रिया भी जो है वो A2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब अगली 1 या 2 क्लासेस के अंदर जो है वो हम उस इक्विलिब्रिया को रिवाइज करेंगे, ताकि जब आप A2 में इक्विलिब्रिया का टॉपिक स्टार्ट करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मीनवाइल अगर आपको लगता है कि कोई और चीजें आपको जो लगता है कि आपको रिवाइज करनी है या आपको प्रॉब्लम कर रही हैं, तो वो आप मुझे जो है वो अपने ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा, तो अकॉर्डिंगली फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या चीज हमें प्रायोरिटी बेसिस पे करनी है। ठीक है बेटा, इज देयर एनी क्वेश्चन? तो प्लीज आस्क। ठीक है जी, तो बस अगेन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो आपको प्रॉब्लम हो काइंडली अपना माइक ओपन करें या मुझे मैसेज करें। देखें, हम जो है वो उस वक्त तक जो है वो इस सिचुएशन से जब तक गुजर रहे हैं, हमें इसी सिचुएशन में रहते हुए काम करना है। हम सबको इसका आदी बनना है, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है इसी इन्वायरमेंट के अंदर, ताकि आपकी लर्निंग इम्प्रूव करे, लर्निंग इम्प्रूव हो। जितनी लर्निंग इंप्रूव होगी उतना ही जो है वो आगे के लिए आपके लिए अच्छा होगा। हमें नहीं पता कि हम कब तक इस सिचुएशन के अंदर आपको पढ़ाएंगे। मुझे अंदाजा है ये मुश्किल काम है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हम सब के लिए। सारे टीचर्स जो है मुश्किल में है, सारे स्टूडेंट मुश्किल में है, बट वी हैव टू फेस दिस। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप ये पूरा चैप्टर जो है वो एएस का अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि मैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पहले उन प्रॉब्लम को हम एड्रेस करेंगे एंड देन वी विल मूव टू एएस इक्विलिब्रिया। राइट जी, थैंक यू।